صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سورۃ الجمعہ آیت 9۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ سورۃ الجمعہ 62:9۔ حدیث صحیح مسلم۔ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن زمین پر اتارے گئے۔ مسلم شریف۔ حدیث صحیح بخاری۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر بندہ اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ بخاری شریف۔ جمعہ کے دن کے فائدے: گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، دل کا نور حاصل ہوتا ہے، روحانی ترقی کا موقع، جنت کی خوشخبری، دعاؤں کی قبولیت کا دن۔ فرشتے مسجد کے دروازے پر نام لکھتے ہیں۔ جو پہلے آتا ہے جمعرات، مغرب کے بعد سے ہی جمعے کی رات شروع ہونے جا رہی ہے، تو آپ سبھی لوگ کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجئے، تو انشاءاللہ پر جمعے کا دن ہے۔ تو آج ہم جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن میں کون سا درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس بارے میں بات کریں گے، اور جمعے کی رات میں یعنی شب جمعے میں کون سا درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جمعے کے دن ہمیں کون کون سی عبادات کر لینی چاہیے، اور جمعے کے پورے دن میں ہمیں کون کون سے کام، کون کون سے اعمال کرنے چاہیے کہ جن پر عمل کر کے ہم سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، کیونکہ ہم سب لوگ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہم سے جلدی نیکیاں نہیں ہو پاتی، لیکن کیوں نہ ہم کچھ تو نیکیاں کمانے کی کوشش کریں اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے اور ہم صرف ایک سجدے کے لیے قبر کے اندر اس دنیا میں آنے کے لیے تڑپ جائیں کہ یہ کاش ہمیں اللہ تعالیٰ صرف ایک موقع دے دے اور ہم اس دنیا میں آ جائیں اور اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھائیں، کیونکہ ابھی تو ہمیں ان سجدوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، مگر کل کو قبر میں جانے کے بعد بہت ہی جلد ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو بہتر ہے نا کہ ہم ابھی سے ہی آخرت کو سنواریں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جمعہ کے دن کی فضیلت کی۔ الحمدللہ جمعہ کا دن دین اسلام میں بہت ہی اہم دن ہے۔ ماشاءاللہ سے اس دن نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ جمعہ کا دن اتنا بڑا ہے کہ اسے تمام دنوں کا سردار بھی کہا گیا ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ دن ہے۔ تو سوچے اس دن میں کی جانے والی نیکیوں کے اجر کیسے ہوں گے۔ بے شک ہر دن اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دن ہے، لیکن جمعہ کے دن کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس دن جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس دن جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اسی دن اللہ کریم نے دنیا کو پیدا کیا اور اسی دن دنیا فنا ہو گئی۔ جمعہ کے دن کیے جانے والے عام اور سنتیں۔ اب اس دن کو آپ کچھ ایسے گزاریں کہ اچھے سے نہا دھو کر یعنی غسل کر کے خود کو پاک کیجیے، اور اگر اللہ کریم نے آپ کو نئے کپڑے دیے ہیں یا پہلے کے جو بھی آپ کے پاس، اور انہیں پہنیں اور خوشبو لگائیں۔ لڑکیاں اتنی خوشبو لگائیں کہ صرف گھر اس کی خوشبو رہے، کسی غیر محرم کو وہ خوشبو نہ جائے۔ اس کے علاوہ ناخون تراشیں، تیل اور اسلامی بھائی سب وقت پر مسجد پہنچے اور پورا خطبہ دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ نماز باجماعت ادا کریں۔ جمعہ کے دن ہو سکے تو صدقہ کیجیے، کم سے کم 10 روپے سے، مگر آپ صدقہ ضرور کیجیے۔ اور ہمارے جو اسلامی بہنیں ہیں وہ گھر پر ہی رہیں اور اپنی نماز کی ادائیگی کریں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن کیا کیا عبادات کرنی چاہیے۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جمعہ کا دن جمعرات کی مغرب سے ہی لگ جاتا ہے، تو جمعرات کی مغرب کے بعد سے ہی ہمیں اپنی عبادت شروع کر لینی چاہیے۔ تو کچھ نہیں تو کم سے کم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد کریں، اور اس کے علاوہ عشاء کی نماز کے بعد آپ سورہ کہف پڑھ لیں۔ آپ شبہ جمعہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ جمعہ کی رات میں بھی سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں، اور دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس بھی ٹائم آپ کو بہتر لگے آپ اس ٹائم میں سورہ کہف ضرور پڑھیں، کیونکہ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، جیسے آج کے جمعہ اپنے پڑھی تو اگلے جمعہ تک اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔
तो जुमा के दिन और जुमा की रात में दोनों टाइम में सूरा कहफ पढ़ने की जरूर कोशिश कीजिए, क्योंकि दोनों टाइम में ही पढ़ने की अलग अलग फजीलतें हैं। अब बात कर लेते हैं कि फजीलत की। हजरत सैयदना बर इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स सूरा कहफ की तिलावत कर रहा था। उनके घर में एक जानवर बंधा हुआ था। अचानक से वो जानवर बिदकने लगा। इस शख्स ने देखा बादल इसको ढांपा हुआ है। इस शख्स ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़ये का जिक्र किया तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फलान तिलावत किया करो कि ये सकीना है जो तिलावत कुरान करते वक्त नाजिल होता है। सुभान अल्लाह। इसके अलावा एक और रवायत है, हजरत सैयदना मुआज़ बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरा कहफ की अव्वल व आखिर से तिलावत करेगा उसके सर ताबा यानी सर से लेकर पांव तक नूर ही नूर होगा, और जो उसकी मुकम्मल तिलावत करेगा उसके लिए आसमान और जमीन के दरमियान नूर होगा। एक और रवायत है, हजरत सैयदना अबू सईद खिजरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जुमा के दिन सूरा कहफ पढ़े इसके लिए दो जुमा के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाएगा। एक रवायत में है कि जो शब जुमा को पढ़े इसके और बैत अल्लाह यानी काबत अल्लाह के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाएगा। एक और रवायत है कि हजरत सैयदना अबू दर्द रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरा कहफ की पहली 10 आयतें याद करेगा दज्जाल के फितना से महफूज रहेगा। तो ये तो हो गई सूरा कहफ की फजीलतें। तो जुमा के दिन सूरा कहफ जरूर पढ़ा करें। तो जुमा के दिन की इबादत में सबसे पहले है सूरा कहफ अपने जरूर पढ़नी है। नंबर 2, जुमा के दिन ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़िए, जुमा की शब में भी और जुमा के दिन में भी। उठते बैठते चलते फिरते ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़िए। जो भी दुरूद पाक आपको आता है, आपको आसान लगता है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वर्द कर सकते हैं। आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, जो कि हम हर नमाज में पढ़ते हैं। इसके अलावा आप शब जुमा का जो दुरूद पाक है आप वो भी पढ़ सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा की रात में इस दुरूद पाक को कम से कम एक मर्तबा भी पढ़ेगा तो मौत के वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा। कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे। सुभान अल्लाह। तो ये दुरूद पाक अब याद कर लें और हर शब जुमा जितना हो सके इस दुरूद पाक को जरूर पढ़ें। ये तो कम से कम एक मर्तबा थे। एक बार मैं भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अल्लाहु सय्यदना मुहम्मद अन्नबी अल अमी अल हबीब अल आली क़दर अल अज़ीम अल जाही व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। इसके बाद आप शब जुमा में सूरा मलक पढ़िए, सूरा यासीन पढ़िए, सूरा मुज़्मल पढ़िए, सूरा सजद पढ़िए, सूरा फतह पढ़िए और सूरा दुखान पढ़िए, और जितना बने उतना अल्लाह ताला का जिक्र करें। कोशिश करें कि जुमा के दिन मगरिब की अजान से पहले पहले, जब हफ्ते का दिन लग जाएगा उससे पहले पहले आप उन तमाम सूरा की तिलावत कर चुके हैं। इसके अलावा काबा शरीफ का तसव्वुर करके इतनी आवाज़ में जिक्र करें कि आपके कानों तक आवाज़ जाए। जब आप कहें या अल्लाह हुआ या अल्लाह हुआ या अल्लाह हुआ, तो आप ऐसे फील करें जैसे अल्लाह आपके बेहद करीब है। आप आंखों में आंसू रखिए, रोते जाएं, अल्लाह को पुकारते जाएं, मतलब इस हालत में अल्लाह ताला का जिक्र करें। इसके बाद आपकी जो भी हाजत है आप अल्लाह ताला से मांगें और अपनी दुआओं में इतना रोएं जैसे आपकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं। तो इस तरीके से अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत मांगें। इस तरह दुआ मांगें जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ से जिद करके मांगता है, इतना करीब हो। दुआ कीजिए कि बस वो और आप ही मौजूद हैं इस मकाम पर जहां आप इबादत कर रहे हैं। याद रहे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मफ़हूम है कि पाकी निस्फ़ ईमान है। तो जहाँ पे आप इबादत कर रहे हैं अपने साथ साथ इस जगह को भी पाक साफ रखिए, इस जगह भी पाक रखिए और ख़ुद को भी पाक रखिए। इंशाअल्लाह आप खुद देखिएगा, आपका इबादत में खुद ब खुद दिल लगेगा इंशाअल्लाह। अब हम बात करते हैं कि जुमा के दिन वो कौन सी घड़ी है जिसमें हम जो भी दुआ मांगे हमारी दुआ कबूल होती है। तो जुमा के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए, क्योंकि जुमा का दिन कबूलियत का दिन है। इस दिन हमारी दुआएं कबूल होती हैं, तो जितना हो सके उतनी दुआएं कीजिए, क्योंकि दुआ करना भी आपका इबादत में शुमार होता है। याद रहे कि जुमा की जो आखिरी घड़ी है यानी असर और मगरिब के बीच का जो वक्त है ना, ये कबूलियत का वक्त है। तो खूब देर
ढेर सारी दुआएं कीजिए, और हाँ, मेरे लिए भी दुआ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की दुआएं की बहुत ज़रूरत है। तो बस आप लोगों ने बिल्कुल भी सुस्ती नहीं करनी। जैसे ही असर की अजान हो, अपने असर का वुज़ू करना है, असर की नमाज पढ़ने के बाद सूरह नबा की तिलावत कीजिए, और उसके बाद दुआएं कीजिए, दुरूद पाक पढ़िए, और असर और मगरिब के जो बीच का वक्त है ना, उसे आप ज़ाया ना कीजिए। ये मैं आपको हर जुम्मे के लिए बोल रही हूँ। आप यकीन करें, ये कबूलियत का वक्त होता है। उस वक्त मैं अल्लाह ताला से जो भी मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें ज़रूर अता करते हैं। तो खुद भी अमल कीजिए और अपने माँ बाप, बहन भाई सब पर इनफरादी कोशिश कीजिए। उन्हें बोल कर तो देखें, ये सब पढ़ने के लिए कुछ नहीं, तो अगर उन्होंने दुरूद पाक भी आपकी वजह से पढ़ लिया तो सवाब आपके भी हिस्से में इतना ही आएगा। तो जुमे का दिन आज मगरिब के बाद से ही लग जाएगा, तो कोशिश कीजिए कुछ सूरतों को आप मगरिब के बाद पढ़ लें, कुछ को ईशा के बाद पढ़ लें, कुछ को फजर के बाद पढ़ लें, कुछ को ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगर इन तमाम सूरतों को आप मगरिब से पहले जरूर पढ़ें। और इसके अलावा दुरूद पाक का विर्द जरूर करें। चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह ताला का जिक्र करें, और असर और मगरिब के दरमियान खूब दुआएं करें। और जब मगरिब की अजान हो, मगरिब की नमाज पढ़ें, उसके बाद सूरह वाक़ियात ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि ये रिज़्क के लिए बहुत मुफीद है। आपके रिज़्क का जो भी मसला है वो हल हो जाएगा, जो भी हर तरह का। इसके अलावा अल्लाह ताला का जो सिफाती नाम है या माइज़ू, उसको आप अव्वल व आखिर एक मरतबा दरा शरीफ के साथ 41 मरतबा ज़रूर पढ़िए, यानी 41 टाइम्स। यकीन करें, जब आप अमल करेंगे तो अल्लाह ताला आपको इतनी इज़्ज़त देंगे कि लोग हैरान हो जाएंगे कि आपको इतनी इज़्ज़त कैसे मिल गई। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी के बड़े से बड़ी मुश्किल हालात को सुकून से गुजार सकेंगे, और अपने हर आजमाइश पर आमीन कहेंगे, और अल्लाह ताला की रज़ा समझ कर अपना सिलाह ज़रूर पाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको सुनने, सुनाने और लोगों को बताने से ज़्यादा खुद अमल करने के तौफीक अता फरमाए। तो खूब इबादत कीजिए, खूब दुआएं कीजिए अपने लिए, अपने माँ बाप, मेरे लिए, मेरी माँ बाप और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिए। जुमा के दिन फजर से मगरिब के दरमियान ये अमल करें। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या गफूर, या वदूद 100 बार दुरूद शरीफ के साथ। इसके फ़ायदे: रिज़्क में वसअत, दिल को सुकून, दुआओं की कबूलियत, गुनाहों की माफ़ी, दुनिया व आखिरत की कामयाबी। जुमा का दिन गुजारने का रूहानी तरीक़ा: सुबह जल्दी उठें, फजर बाजमात अदा करें, कुरान की तिलावत करें, ख़ास तौर पर सूरह कहफ़, दिन भर दुरूद शरीफ की कसरत करें, नफल नमाजें पढ़ें, चाश्त इशराक, सलातुत तस्बीह, अल्लाह से दिल खोल कर दुआ करें, ख़ास तौर पर असर के बाद अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वर्ज़ुक़नी अफ़नी वतवफ़नी व अंत राज़िन अन्नी। अल्लाह मुझे बख्शा दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे हिदायत दे, मुझे रिज़्क अता फरमा, मुझे आफ़ियत दे, और जब मौत दे तो इस हाल में कि तुम मुझसे राज़ी हो। इख्तितामी दुआ अरबी उर्दू: अल्लाहुम्मा इजअल यौमल जुमुआ नूरन लिक़ुलूबिना व सकीनतन लिनुफूसिना व कबूलन लिदुआइना व रिदाका फ़ौक़ कुल्लि शै। अल्लाह, जुमा का दिन हमारे दिलों के लिए नूर, नफ्सों के लिए सुकून, दुआओं की कबूलियत का ज़रिया और अपनी रज़ा का मकाम